Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles we are discussing today. So the first article is on the aspects of G20 जहां पर particular focus डालेंगे on the origin of G20, on the mandates of G20 and on the functions of G20 and afterwards having a thorough understanding on G20 फिर हम लोग move करेंगे on the digital aspects of G20 कैसे G20 की organization as such is having a coordinated effort to make the digital space a free and secure space उस पे बात करेंगे in our first article. The second article is on the aspects of National Food Security Act. So यहाँ पर बात करेंगे National Food Security Act. Now even though this act is a controversial one, there's a lot of politics involved in it. But in politics को touch ना कर इनके biased views को touch ना कर एक unbiased एक UPSC के लिए जो important aspects हैं उसके nuances को समझेंगे in our second article. The third article is on the aspects of V-shaped recovery. So यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमी में किस किस शेप्स के रिकवरीज होते हैं एंड हर एक शेप के रिकवरी का क्या सिग्निफिकेंस है और इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सेक्टर्स में किस टाइप की शेप्स को हम लोग या रिकवरी को हम लोग देखते हैं दैट वुड बी सीइंग इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड एज यूजुअल द फोर्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one that is on the aspects of G20 as well as particularly we'll be focusing on the digital space aspects or ऐसे initiatives जो कि digital space से related हैं under the ambit of G20 that we'll be focusing here. Now as far as the G20 is concerned, we have already discussed the basic nuances of G20 in our previous video of 14th November जहां पर we discussed कि G20 है क्या, G20 कैसे फॉर्म हुआ था, क्यों फॉर्म हुआ था, G20 के क्या क्या कंपोजिशंस हैं, उनके क्या क्या वर्क्स हैं, as well as we then moved on into the finer details जहां पर we discussed on the significance and challenges of G20. And that basic understanding please refer to from our 14th November video. अब इस पे एक स्टेप अहेड मूव करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली क्योंकि इंडिया जो है वो एज ऑफ नाउ इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 की जो प्रेसिडेंसी है दैट इज इन इंडियाज हैंड और इसीलिए इंडिया कहीं ना कहीं काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च करना चाहती है एंड इन ऑल दोस इनिशिएटिव्स जो मेजर फोकस एरिया है दैट इज द डिजिटल एरिया एज ऑफ नाउ और डिजिटल एरिया में जो भी इनिशिएटिव्स इंडिया लॉन्च करना चाहता है उसमें इंडिया के तरफ से जो कोऑर्डिनेटेड पार्टनर रहेगा जो करस्पॉन्डिंग पार्टनर रहेगा दैट वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया लॉन्च करना चाहती है इन द डिजिटल स्पेस कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज इन थ्री मेन एरियाज. पहला एरिया इज ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग एब्रिवेट करके कहते हैं एज DPI, देन साइबर सिक्योरिटी एंड द थर्ड वन इज डिजिटल स्किल डेवलपमेंट. और इन तीनों एरियाज में इन तीनों एरिनास में इंडिया थ्रू इट्स G20 पोटेंशियल इंडिया और एक्सप्लोर करना चाहता है और इंडिया अपने मार्केट को एक मेजर प्लेयर और एक मेजर स्टेक होल्डर की तरह प्रपोज करना चाहता है. दैट इज समथिंग जो कि इंडिया एस्पायर करता है. Now, for all those aspects, there's a lot of campaigns, there's a lot of initiatives, there's a lot of alliances जो कि इंडिया क्रिएट करता है. For your reference, for example, there's the Stay Safe online campaign, there's this DIA program, there's this Digital Economy Working Group DEWG. So काफी सारे initiatives, काफी सारे alliances, काफी सारे development working groups बना चुके हैं इंडिया और बनते आ रहे हैं ताकि इंडिया को अभी एक coordinated action launch करने की मौका मिले. So let's talk about these options one by one. So the first preference, first initiative that the India has launched is something known as India Stack. So what is this India Stack? India Stack एक set of APIs है. Now API क्या होता है? API is Application Programming Interfaces. जो आप एप्लीकेशंस कोई भी ऐप के खोलते वक्त जो आप इंटरफेस देखते हो जो पेज देखते हो दैट इज नॉन एज इंटरफेस और इंडिया स्टिक जो है वो एक सेट ऑफ APIs हैं जो कि अलाउ करते हैं गवर्नमेंट्स को बिजनेसेस को और स्टार्टअप्स या डेवलपर्स को ताकि वो यूटिलाइज कर पाए एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि इंडिया में जितने भी डिजिटल स्पेसेस के इश्यूज हैं वो उसे रिजॉल्व कर पाए टुवर्ड्स एक प्रेजेंटलेस पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी सिस्टम की ओर. So that is the bigger aim of the India Stack. So India Stack में वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी ओपन APIs हैं उसे वो वहां पर लॉन्च करते हैं ताकि बिजनेसेस हो या आपके डेवलपर्स हो या आपके स्टार्टअप्स हो वो इन इंटरफेसेस को यूज कर पाए ताकि जो इकोनॉमी है इकोनॉमी एक फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़े एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़े.
अब बात करते हैं कि कौन से एपीआईज हैं जो कि इसके कोर में हैं, जो कि अवेलेबल हैं इंडिया स्टैक में। सो आधार ऑथेंटिकेशन की जो एपीआई हैं, आपके आधार ईवाईसी की, ई साइन, डिजिटल लोकर, यूपीआई, डिजिटल यूजर कंसेंट, सो ये सब चीजें जो हैं दीज आर ऑलरेडी देयर, इनकी जो एपीआईज हैं वो अवेलेबल हैं एट द इंडिया स्टैक। और इसके साथ साथ जीएसटीएन, बीबीपीएस एंड ईटीसी जैसे जो एपीआईज हैं वो भी लॉन्च करने के एस्पेक्ट्स को अंडर कंसिडरेशन माना जा रहा है। So there is a lot of aspects when we talk about India Stack. और इसके जैसे ही there is another step या particularly कहें एक alliance है जो कि इंडिया ने and over the years other countries ने मिलकर बनाया है towards a right step towards the digital economy. And that step is known as Digital Innovation Alliance, abbreviated as DIA often. इसका जिक्र पेपर्स में G20 DIA के तौर पे किया जाता है। So what is this G20 DIA? So ये एक अलायंस है जहां पर जो भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें इनोवेटर्स को और रिकॉग्नाइज करें इनोवेटर्स को जिनके पास ऐसे डिजिटल सॉल्यूशंस हैं जो कि दुनिया के डिजिटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। तो इसमें क्या कराएंगे, इसमें ये कंपटीशन कराएंगे जहां पर जितने भी इनोवेटर्स हैं, बिजनेस पार्टीज हैं, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सब आएंगे, इवन स्टेट एक्टर्स भी आएंगे और वो अपने डिजिटल सॉल्यूशंस को दिखाएंगे और एक कंपटीशन कराएंगे। और जो टॉप 3 इनोवेटर्स होंगे हर एक कैटेगरी के, टॉप 3 इनोवेटर्स ऑफ हर एक कैटेगरी के, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको इंक्यूबेट करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे। और वो जो इंक्यूबेटर्स हैं जो सक्सेसफुल होके निकलेंगे इन द फ्यूचर, वो फिर आपके नए इनोवेशंस को फंड करेंगे। सो देयर वुड बी एन रिकरिंग साइकिल जो कि इस डीआई के थ्रू हम लॉन्च करना चाहते हैं। Another step is known as developmental working group. So what is this developmental working group? So developmental working groups या DWGs ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि G20 के टोरंटो समिट से निकल के आए। So G20 के टोरंटो समिट that happened in way back in 2010 और उसमें जो लीडर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि अगर हमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाना है टुवर्ड्स द गोल्स जो कि हम G20 में चाहते हैं, देन हमें एक डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी जो कि जिनका जो मैंडेट होगा दैट वुड प्योरली ऑन द ग्रुप्स डेवलपमेंट एजेंडा। जितने भी एजेंडा हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि G20 के साथ साथ हैं, जो कि G20 के अंदर हैं, तो उन एजेंडाज में काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप का होना जरूरी है ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ला पाए और इसीलिए DWGs का फॉर्मेशन हुआ। नाउ क्योंकि G20 अगेन इज अ वेरी मल्टी डाइवर्स एंड मल्टी फेसेटेड ग्रुप और इसीलिए काफी सारे डेवलपमेंटल एजेंडाज हैं एंड वन ऑफ द डेवलपमेंटल एजेंडा इज इट डिजिटल इकोनॉमी और इसीलिए देयर इज ए पर्टिकुलर डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप जो कि डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल स्पेस से रिलेटेड है जिसका जिक्र आज के न्यूज़पेपर में था। विद दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब यहां पर ये जो आर्टिकल है इट इज सराउंडेड और इट इज मेड विद अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, विद अ लॉट ऑफ ओपोजिशंस एलिगेशंस एंड ऑल। बट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, हमें इन पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है। वी शुड बी अनबायस्ड इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज वाई यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in our 24 दिसंबर वीडियो, जहां पर आई स्टार्टेड ऑफ विद कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट है क्या, क्यों लॉन्च किया गया था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। देन आई इवन डिस्कस कि कैसे इस एक्ट के थ्रू हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, कैसे जो आपके इन्फेंट से लेकर क्रेडल तक का जो जर्नी है, जो आपकी टोटल लाइफ जर्नी है, उसे कैसे उस लाइफ में कैसे आप फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हो, कैसे एनहांस कर रहे हो फूड सिक्योरिटी को, कैसे कहीं ना कहीं आप एम्फोसाइज दे रहे हो फूड सिक्योरिटी। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 24 December video itself. So please refer to this video so that you have a very good clarity of the NFSA, its significance and the challenges of NFSA. With that, now let's move to our next article that is on the aspects of V-shaped recovery. अब ये जो कमेंट आ रहे हैं, this comment is coming from Josindra Rusk India, but this comment is regarding the civil aviation. बट क्योंकि वी शेप रिकवरीज पे काफी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, देर इज इवन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चांस, एक रिकरिंग चांस भी है कि इन द नियर फ्यूचर सिमिलर इकोनॉमिक रिकवरी पे क्वेश्चन आए। So that is why as an UPSC aspirant you should be aware of all the economic shaped recoveries जो कि out there bookish examples में है। So let's see those examples. जब हम लोग इकोनॉमिक थियरीज पढ़ते हैं, there's a lot of shapes जो कि हम लोग रिकवरी के साथ हम लोग पढ़ते हैं या मेंशन करते हैं, एंड सम ऑफ them आर बुकिश एग्जांपल्स itself.
बट एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न कुछ इंपॉर्टेंट रिकवरीज या कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स ऑफ रिकवरीज पढ़ेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी ऑफन डिस्कस किए जाते हैं और डिबेट किए जाते हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन वन इज द वी शेप रिकवरी. सो वी शेप रिकवरी क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ रिकवरी जहां पर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्विक एंड सस्टेन रिकवरी इन द मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन. दैट मीन्स मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हो सकता है कि कोविड के कारण या किसी अदर रीजन के कारण जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है. सो आफ्टर दिस डिक्लाइन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने या किसी एक मेजर के कारण वापस जो इकोनॉमी है वो वापस प्रॉस्पर करने लगे या वापस ग्रो करने लगे. सो दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन वी शेप स्ट्रक्चर, और इस वी शेप स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के कारण ही इस टाइप की रिकवरी को हम लोग कहते हैं वी शेप रिकवरी. Another type of recovery is the K-shaped recovery. So what is K-shaped recovery? K-shaped recovery ऐसे recovery होते हैं जहां पर the performance of different parts of economy diverge like the arms of letter K. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन, बिकॉज ऑफ कोविड एक इकोनॉमिक रिसेशन होता है और उसके बाद जब रिकवरी होती है देन वन सेक्टर परफॉर्म्स बेटर ओवर द अदर. हो सकता है कि आपकी जो सर्विस सेक्टर है वो बेटर परफॉर्म करिए इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है इन कंपैरिजन ऑफ द रिकवरी बिटवीन द सेक्टर्स और देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द रिकवरी ऑफ दीज सेक्टर, और इसी के कारण इस टाइप की रिकवरीज को हम लोग कहते हैं के शेप रिकवरी. एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर कि जब भी हम लोग के शेप रिकवरी की बात करते हैं इट मींस कि ये जो रिकवरी हो रही है इट एग्जिबिट्स वेल्थ इनइक्वालिटी होगी उसमें, या ग्रेटर कॉर्पोरेट मोनोपोलीज होगी, या रेशियल वेल्थ गैप होगा, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या लो इनकम वर्कर्स होंगे. So these are some of the negative aspects associated with K-shaped recovery, and that is why K-shaped recovery is not a beneficial one. Another type of recovery, or the third type of the recovery, is a W-shaped recovery. So what is W-shaped recovery? So ये वैसे recovery होती है जहां पर जो economy है that passes through a recession and into a recovery just like the V-shaped recovery, but उसके बाद it again immediately turns down into another recession. इसे हम डब्ल्यू शेप रिकवरी कह सकते हैं या डबल डिप रिसेशन कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि किसी भी कारणवश या कोविड के कारण ही आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, बट सून आफ्टर आप कुछ मेजर्स ले लेते हो, गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले लेती है एंड द इकोनॉमी अगेन प्रॉस्पर्स. बट जैसे ही प्रॉस्पर करती है अगेन इट फॉल्स डाउन एंड अगेन इट कम्स अप. सो ये जो डबल डिप हो रहा है, दिस डबल डिप इज समथिंग नॉन एज डब्ल्यू शेप रिकवरी एंड इट इज वेरी वरीसम व्हेन इट कम्स टू एनी कंट्रीज इकोनॉमी. अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें सो इकोनॉमिक्स की माने तो इंडियन इकोनॉमी मोर और लेस शोकेसेस के शेप रिकवरी और डब्ल्यू शेप रिकवरी, बट इट इज nowhere near to V shape recovery. Now, even though this is a debatable topic, so let's leave it to the economists to decide. But as far as UPSC is concerned, we can mention that more or less Indian economy is closely related to K-shaped recovery. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of quiz of the day. So the first question is regarding the Indus Water Treaty, a very important and very old treaty, where the second question is regarding the electronic waste management rules. Again, both these questions are based on the importance of current affairs, so please refer to these questions, please attempt these questions. और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, as well as PPT जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in the video's description itself. So stay tuned for more content, stay safe, see you soon.